ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ اسے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ بہت لاڈ اور پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، ورنہ لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت جو دائی ملکہ کے پاس موجود تھی، ملکہ کی حالتی زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا فرما دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اب دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے سے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ زندگی گزارے گی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوا اسی سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے اسے سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات محل میں پھیلا دی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بری عادت کے باعث مسکرایا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ دائی کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو محل میں لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا۔ وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی اعلیٰ پرورش کے لیے دے دیا کرتی تھی۔ شہزادی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے شہزادی خوب قد کاٹ نکالی۔ خوبصورت تو تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دیکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا کون ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جیسے آپ کا حکم، کیونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں، لیکن دائی کے گھر بہت بار رشتہ بھیجا۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے لائے اور بادشاہ سلامت کے سامنے ہی اسے کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا، بیچاری پہلے ہی 2 ہڈیوں پر کھڑی تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی ہے،
मैंने इसे हलाक करने की बजाय ले जाकर अपने घर में उसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने इसे इस अजीम गुनाह से बचा लिया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। इसने फौरन अपने बेटे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और कत्ल कर दो। इसकी आंखें निकालकर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा देना ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा बहुत परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल कर दे। उसे किसी सूरत ये गवारा न था। अगर चाल से अपनी बहन के मुतालिक अब मालूम हुआ, लेकिन इसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने शहजादी को कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर उसने अपनी बहन को साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। इसने अपनी बहन से कहा, मैं किसी भी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूं। आगे तुम्हारी किस्मत के तुम्हें दरिंदे खा जाएं। अब फिर तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तो मुझे मार दो। मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गिले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मान लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने एक हिरन का शिकार किया, इसकी गर्दन का खून और आंखें निकाली और महल वापस आकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने एक आईना मंगवाया। इसमें इन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। दूसरी तरफ मलिका का रो रो कर बुरा हाल था। इसने किसी तरीके से शहजादे को अपने पास बुलाया और अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। शहजादे ने मां के सामने सारा सच बयान कर दिया। मलिका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ बुलंद किए और अपनी बेटी के लिए दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, इसे अपने अमान में रख। उधर शहजादी जंगल में जिंदगी गुजारने लगी। अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर गुजारा करती। वक्त गुजरता गया झाड़ियों कांटों से उलझकर इसके कपड़े तार तार हो गए। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि इत्तेफाक से बादशाह इसी तरफ आ गया जहां शहजादी थी। शहजादी ने जब घोड़े के कदमों की आहट सुनी तो जल्दी से एक घने दरख्त पर चढ़ गई। उधर बादशाह भी इसी दरख्त के नीचे आकर ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। बादशाह ने एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए आराम की खातिर लेट गया। चूंकि इसका मुंह आसमान की तरफ था, इसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी चीज पर पड़ी। बादशाह उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में कहने लगा, ए अल्लाह की मखलूक, क्या तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, अजिन हो या फिर कोई इंसान हो? जो भी हो, अपने आप को जाहिर करो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूं। मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे अपने नीचे बिछी चादर दे दो ताकि मैं अपने जिस्म को ढांप सकूं। बादशाह ने फौरन अपने नीचे बिछे कपड़े का गोला बनाया और शहजादी की तरफ फेंक दिया। शहजादी ने इस कपड़े से अपने जिस्म को ढांपा और दरख्त से नीचे उतर आई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो इसके हवास गुम हो गए। बादशाह के पूरे मुल्क में इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी। बादशाह पूरे दिल और जान से शहजादी पर फिदा हो गया। इसने शहजादी से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। शहजादी ने फौरन हाँ कर दी।
क्योंकि वो भी ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर पहुंचा और उससे कहा कि ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है, मैं कल तुमसे इसका रिश्ता मांगने आऊंगा और निकाह करके अपनी अमानत यहां से अपने साथ ले जाऊंगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी, जब आपका दिल करे उसे बया कर ले जाएं। अगले दिन वकील और काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वजीर के घर पहुंचे। वजीर ने रिश्ता के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन में मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का पैगाम भेजा और शहजादी को बया कर महल ले आया। बादशाह और शहजादी दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से इसके मुतालिक कुछ ना पूछा। चंद साल बाद उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। इसने शहजादी से, जो अब मलिका बन चुकी थी, कहा, अब जबकि अल्लाह ताला ने हम दोनों को औलाद नरीना से नवाजा है, तुम अब एक बेटे की मां बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और तुम्हारा ताल्लुक कहां से है। शहजादी ने किसी तरीके से बात को टाल दिया। वक्त गुजरता चला गया। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने फिर अपना सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। जब तीसरे बेटे की विलादत हुई तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि फलां मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को बेटियों से नफरत थी। इसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने किस तरह मुझे बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह मेरे भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं जंगल में जिंदगी गुजारने लगी, फिर अपने मुझे देखा। आप मुझे अपने साथ ले आए और मुझसे शादी कर ली। अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अक्ल जमाने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें जमाने का गुलाम बना देती है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। पैसों से मोहब्बत न किया करो, सुकून मिल जाएगा। दुआ पर भी जिद ना करो, नामंजूर दुआ का भी इतना ही एहतराम करो जितना मंजूर दुआ का। अगर ये फर्क समझ नहीं आता तो सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। घर में खैर व बरकत लाना चाहते हो तो घर से 2 चीजें निकाल दो। नंबर 1, घर में दीवारों पर लगी जानवरों की नक्श। नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। इनकी वजह से खैर व बरकत के फरिश्ते नहीं आते।